Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter, new topic which is based on electricity and magnetism. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ये चैप्टर है बच्चों. सो फर्स्ट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट टू नो कि कौन कौन से टॉपिक हाईलाइट्स करने वाले हैं चैप्टर के अंदर बच्चों. सो फर्स्ट है बच्चों मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, टेस्ट फॉर अ मैग्नेट, electromagnet, uses of electromagnets, electrical bell, electricity and electric current, conductors, insulators of electricity, source of electricity, cells, dry cells, battery, electric power plants, electric generators and inverters, solar cells, electricity from wind, electric circuit, closed and open circuits, resistance and resistors, some other electrical devices, electric symbols, series and the parallel electric circuits, electrical hazards, safety devices in electrical connections, simple rules for the safe use of electricity at home. ये सभी टॉपिक्स बच्चों वन बाय वन कवर करेंगे. Then we will start from the theme of the chapter बच्चों. So let's begin. We are aware of electricity and electric current. Electricity is the form of energy and we can change it into many other types of energy such as light energy, sound energy, mechanical energy, heat energy. Electric current flows from the end of the cell marked प्लस जिसको बच्चों पॉजिटिव बोला जाता है कॉल द पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड थ्रू द मेटल्स वायर्स टू एंड ऑफ द सेल्स मार्क्ड जिसको नेगेटिव बच्चों कॉल द नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है. वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड द मैग्नेट्स फॉलोइंग आर द two important properties of magnets होती है बच्चों and it attracts small pieces of iron towards itself. The property is called the attractive property. It's suspended freely or allowed to move freely on a pivot. A bar magnet or magnetic needles away points in the geometrical north-south directions. This property of the magnet is called the directive property. Earlier it was thought that magnetism and electricity are two separate phenomena, but later on it was firmly established that electricity and the magnetism are interrelated phenomena. When an electric current is passed through a coil, the coil behaves as a magnet. Such a magnet is called an electromagnet. Many devices around us like the electric bell, telephone, loudspeaker, electric motor, tape recorders, dynamo, etc. have electromagnets in them. An electric cell is a source of electricity. Electric cells are used in torches, watches, calculators and various cells-operated toys. A combination of two or more cells constitutes a battery. Circuits through which an electric current flows are called the electric circuits. In this chapter, we will read about the laws of magnetism, test for a magnets, electromagnets, electric cells, electric components and series and parallel electric circuits. Then बच्चों यहाँ पर जो चैप्टर है इसके अंदर बताया गया है किस तरह से हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों वो फॉर्म होती है एनर्जी से. देन उसके अंदर एनर्जी होती है और चेंज होती है बच्चों बहुत तरह के अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर जिसमें बच्चों लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी भी होती है. सो इलेक्ट्रिक जो है करंट फ्लो करता है बच्चों तो उसको बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो करते करंट को. तो जो सेल पे मार्क होता है बच्चों कभी आपने देखा होगा एक साइड प्लस साइन होता है एक साइड माइनस साइन होता है. इसका मतलब जो प्लस है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है और यहाँ पर माइनस बच्चों नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है. देन यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिज्म होता है. मैग्नेट्स को आपने सुना होगा जिसको चुंबक बोलते हैं बच्चों. यहाँ पर भी उनकी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की जो अट्रैक्ट करती है स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन टूवर्ड्स इटसेल्फ जिसकी वजह से बच्चों जो लोहा है उससे अट्रैक्ट करता है तो इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. देन बच्चों यहाँ और अदर वेज में अगर देखा जाएगा तो जो मैग्नेट होती है मैग्नेटिक नीडल्स होती है वो ऑलवेज पॉइंट करती हैं एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जिसको नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन में बच्चों वो हमेशा मूव करती हैं. देन ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेट्स की डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. देन ये बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सेपरेट होता है फेनोमेना के बेस पर और ये फॉर्मली एस्टेब्लिश करती है इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म के तौर पर और यहाँ पर इंटर रिलेटेड फेनोमेना शो करती है. इलेक्ट्रिक करंट होते हैं पास करते हैं बच्चों कॉइल के थ्रू भी यहाँ पर. देन कॉइल बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह जिसमें मैग्नेट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट.
देन यहाँ पर और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं बच्चों जिसमें यूज़ किए जाते हैं। हमारे आसपास देखते होंगे आप इलेक्ट्रिक बेल को, टेलीफोन को, लाउड स्पीकर को, इलेक्ट्रिक मोटर को, टेप रिकॉर्डर को, देन डायमो को, ये सब के सब में बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है थ्रू अ कोल और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है बच्चों वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक सेल जो है बच्चों वो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक सेल यूज़ किए जाते हैं टॉर्चेज में, वॉचेज में, कैलकुलेटर्स में और बहुत सारे सेल ऑपरेटेड टॉयज के अंदर। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों दो या दो से ज़्यादा सेल का, जिसको हम बैटरी बोलते हैं। देन सर्किट्स जो होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो करता है उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों वही सब हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, टेस्ट कैसे करेंगे मैग्नेट का बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, उनकी सीरीज के बारे में और पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में भी। देन बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर से रिलेटेड जो है मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है बच्चों लॉर्डस्टोन। The first magnet was discovered around 800 BC in the towns of the Magnesia, which wondrous property. It was called magnetite. It was in sound the Magnesia. It was later found that it was composed of oxides of iron Fe3O4. Now it is called the magnet. It attracts iron pieces towards itself. This property of attracting iron pieces by the magnets is known as the magnetism. Thus, magnet is a substance which attracts iron object and when suspended freely, always rest in particular direction, नॉर्थ और साउथ में। लेट अस स्टडी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। देन बच्चों यहाँ पर सबसे पहले लॉर्डस्टोन क्या होता है, जो फर्स्ट मैग्नेट जिन्होंने डिस्कवर किया था बच्चों वो था 800 BC के अराउंड किया था। देन ये बच्चों किस टाउन में किया था, मैग्नेशिया में किया गया था। देन यहाँ पर वॉन्ड्रस प्रॉपर्टीज इसके बारे में बताई गई जिसको बोला गया बच्चों मैग्नेटाइट, और यहाँ पर बच्चों मैग्नेशिया में फाउंड हुआ था इसलिए इनका नाम भी मैग्नेटाइट ही रखा गया, उससे रिलेट करता हुआ। देन बच्चों उसके बाद यहाँ पर फाउंड हुआ है, कंपोज हुआ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, जिसको ये अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या करता है बच्चों, आयरन के पार्टिकल्स को, आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और आयरन पीस वहाँ पर बच्चों जो प्रॉपर्टी कहलाएगी उसको अट्रैक्ट करने की, पीस ऑफ आयरन को, तो ये कहलाएगी मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेट ही बच्चों सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है। सो मैग्नेट एक सब्सटेंस हो गया जो अट्रैक्ट करता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को और सस्पेंड होता है फ्रीली तरीके से, ऑलवेज रेस्ट, और पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इसकी बच्चों, एक नॉर्थ और एक साउथ डायरेक्शन बच्चों। देन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट्स इन साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैग्नेट से रिलेटेड है। फर्स्ट है मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. These poles are named according to the orientation of the ends of the freely suspended floating magnets towards the geometric and geographic poles of the earth. Then बच्चों आपने मैग्नेट का सुना होगा, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है. देन बच्चों ये अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ एंड्स ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड फ्लोटिंग करते हैं मैग्नेट्स टूवर्ड्स द जोग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ की तरह ही सेम. नेक्स्ट है बच्चों लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रेपल ईच अदर एंड वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो याद रखेंगे बच्चों कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रेपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं रेपल करते हुए, और यहाँ पर बच्चों अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट्स करते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस इज रिलीज इज नॉन इज द मैग्नेटिक field. The magnetic field or strength of a magnet is commonly explained by the magnetic field lines or magnetic lines of force. Then बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक पोल के अंदर साउथ और नॉर्थ पोल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर एक फील्ड तैयार हो रहा है बच्चों. तो ये फील्ड हमेशा ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये प्रॉपर बच्चों एक फील्ड की कैटेगरी में आता है, तो इसको बच्चा बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड. It is found that the magnetic field lines of a magnet start at the north pole and enter at the south pole of the magnet and run from the south pole to the north pole inside the magnet. Thus, in magnetism lines of the force for continuous closed curves or loops. और हमेशा बच्चों ये क्लोज लूप बनाती है, आप देख रहे हो पूरा क्लोज लूप तैयार हो रखा है अंदर अंदर, और बच्चों ये अट्रैक्ट करती है, फाउंड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होती है बच्चों नॉर्थ पोल से एंटर करते हुए साउथ पोल में और साउथ पोल से एंटर करेंगे नॉर्थ पोल में और पूरा लूप तैयार कर लेती हैं. नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बच्चों द फील्ड लाइंस
are more closely spaced, concentrated near the poles, which explains the maximum strength of the magnet near the magnetic poles. और नेक्स्ट है बच्चों, इफ soft iron bar is brought closer to a strong magnet, the iron bar also starts behaving as magnets and attracts small iron pins. However, the iron bar shows magnetizations as long as the magnet is placed near it. As soon as the magnet is removed, the soft iron bar loses its magnetizations and the iron pins attracted by it fall down. The property of producing temporary magnetism is magnetic substance. Due to the presence of the magnetic near it is called the magnetic induction. देन बच्चों 6 पॉइंट पे हमने देखा होगा कि सॉफ्ट आयरन बार लिया है और उसको क्लोजर लेके आते हैं स्ट्रॉन्गर, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास। तो आयरन बार क्या होता है, वो स्टार्ट कर देता है मैग्नेट में बिहेव करना, अट्रैक्ट करने लग जाता है आयरन पेन्स वहां पर, और जैसे ही बच्चों अट्रैक्ट करती है तो वो पास में आ जाती है और आयरन बार शो करता है पूरा मैग्नेटाइजेशन एज लॉन्ग एज मैग्नेट प्लेस नियर इट, पूरा प्रॉपर तरीके से। और बच्चों और चीजों को दूर छोड़ देता है, पूरा जितना अट्रैक्ट कर सकता है उतनी तरफ अपनी तरफ खींचता ही रहता है आयरन पिन्स को बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग टेम्परेरी मैग्नेटिज्म जो कहलाती है बच्चों, इसके अंदर सब्सटेंस किस वजह से होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मैग्नेट की वजह से, और इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। फर्स्ट है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट बच्चों एक्टिविटी दी गई है, इसमें एक्टिविटी से समझेंगे। सबसे पहले एम है टू शो दैट freely suspended magnet always rest in north south direction. So material required रहेगा 1 bar magnet, a piece of thread and an iron stand. Procedure के अंदर take a bar magnet, tie a piece of thread in centers of the magnets and the suspended from the stand and slightly disturb the suspend magnet and let it come to rest. The magnet always rests in a particular direction. The magnet points towards north and south direction. Observation बच्चों, the end pointing towards the north in the north pole of the magnet and the end pointing towards south in its south pole. Then बच्चों इस एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कि हमने पहले बार मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट को बच्चों यहाँ पे टाई कर लिया प्रॉपर तरीके से हमने थ्रेड की हेल्प से सेंटर ऑफ द मैग्नेट में, और सस्पेंड करते हैं वहाँ पर एक्सटेंड को भी साथ में स्लाइटली, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, प्रॉपर तरीके से ज़्यादा हिले ना। तो मैग्नेट बच्चों ऑलवेज रेस्ट कर रहा है वहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, लेकिन मैग्नेट पॉइंट्स जो बच्चों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में हमेशा अपने आप ही आ जाएंगे। तो ऑब्जर्व क्या किया कि जो एंडिंग पॉइंट्स है बच्चों, वो एक रहता है नॉर्थ की तरफ और दूसरा रहता है साउथ की तरफ, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर। Activity 1. Aim to show that a freely suspended magnet always rests in north-south direction. Materials required: 1 bar magnet, a piece of thread and an iron stand. Procedure: take a bar magnet, tie a piece of thread in the center of the magnet and suspend it from the stand and slightly disturb the suspended magnet and let it come to rest. The magnet always rests in a particular direction. The magnet points towards north and south direction. Observation: the end pointing towards north is north pole of the magnet and the end pointing towards south is its south pole. Fig 7.3. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर सेकंड पॉइंट्स के अंदर, like magnetic poles repulse one another and unlike magnetic poles attract each other. Thus the north magnetic poles repulse another north pole but attracts a south pole. Similarly, a south magnetic poles repulse another south pole but attracts a north pole. Then बच्चों यहाँ पर magnetic pole जो होते हैं वो रेपल करते हैं एक दूसरे के साथ, और unlike magnetic poles क्या करते हैं बच्चों, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। देन एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे बच्चों इनको। देन एक्टिविटी 2 के अंदर एम दिया गया है टू शो मैग्नेटिक अट्रैक्शंस बिटवीन अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स एंड रिपल्शंस लाई बिटवीन लाइक मैग्नेटिक पोल्स। मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा 2 बार मैग्नेट्स लेने हैं, अ पीस ऑफ थ्रेड एंड एन आयरन स्टैंड भी आपको यूज करना है। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले बच्चों टेक अ बार मैग्नेट्स एंड सस्पेंड इट फ्रॉम द आयरन स्टैंड विद अ पीस ऑफ थ्रेड। Let the magnets rest in north-south direction. Note the north and south poles of the magnet. Bring one of the poles of the another magnet close to one end of the hanging magnet. Note the observation. Repeat it by inverting the another magnet with the other end.
follow it once again with the other end of the suspended magnet. So observation क्या रहेगी, when the south pole of the another magnet is brought closer to the south pole of the suspended magnet, it repels away. वो एक दूसरे से दूर भागेंगे बच्चों. जब साथ वालों को लेके आओगे, साउथ वालों को साथ में लाओगे तो दूर भागेंगे, नॉर्थ वालों को साथ में लाओगे तो दूर भागेंगे. देन जैसे ही बच्चों वो दूर जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, वहां पर आप उसको कोशिश करते हो लाने की, लेकिन रेपल्स कर रहे हैं. सो व्हेन द साउथ पोल इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स. द सेम थिंग हैपन्स विद द अदर एंड. सो नॉर्थ में और साउथ पोल जो होते हैं बच्चों वो करते हैं रेपल्स ईच अदर, और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ होंगे बच्चों वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जैसा कि इस एक्टिविटी में शो किया गया है. सो कंक्लूजन क्या मिलेगा बच्चों देखने में, लाइक पोल्स रेपल्स व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. Activity 2. Aim to show magnetic attraction between unlike magnetic poles and repulsion between like magnetic poles. Materials required: 2 bar magnets, a piece of thread and an iron stand. Procedure: take a bar magnet and suspend it from the iron stand with a piece of thread. Let the magnet rest in NS direction. Note the north and south poles of the magnet. Bring one of the poles of another magnet close to one end of the hanging magnet. Note the observation. Repeat it by inverting the another magnet with the other end. Follow it once again with the other end of the suspended magnet. Observation: when the south pole of another magnet is brought closer to the south pole of the suspended magnet, it repels away. When the south pole is brought close to the north pole of the suspended magnet, it is attracted towards it. The same thing happens with the other ends, NN or SS poles, which repel each other, and NS or SN poles attract each other. 7.4. Conclusion: like poles repel while unlike poles attract. The magnitude of repulsive and attractive force depends on the strength of the magnetic poles and the distance between the poles. Next point है बच्चों third, poles exist in pairs. If we take a bar magnet and cut it into 2 pieces, the 2 new magnets will have their own north and south poles. If we further divide these 2 smaller magnets, these 4 new magnets will have their own north and south pole. So a magnet always has 2 opposite poles होंगे. एक्टिविटी के थ्रू बच्चों समझते हैं. पहले हमने पूरा यहाँ पर मैग्नेट ले लिया था बच्चों, एक साउथ पोल था एक नॉर्थ पोल. यहाँ पर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, आपको लेना है एक बार मैग्नेट एंड अ हैमर. देन प्रोसीजर के अंदर बच्चों टेक अ बार मैग्नेट एंड ब्रेक इट इनटू 2 पीसेज. यू विल सी दैट ईच ऑफ द 2 पीसेज विल हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो तोड़ने के बाद भी बच्चों उनके 2 पोल बन जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल. सो यू कैन वेरीफाई बाय यूजिंग अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक अगेन. ब्रेक ईच पीसेज ऑफ द मैग्नेट इनटू 2 स्मॉलर पीसेज. ऑब्जर्व क्या किया बच्चों आपने, यू विल सी दैट ईच स्मॉल पीसेज अगेन बिहेव्स लाइक एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट हैविंग बोथ अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. दोबारा से बच्चों तोड़ने के बाद भी उनके 2 पोल बन जाते हैं दोबारा से, वो इंडिपेंडेंटली तरीके से, एक दोबारा से साउथ हो जाता है और एक नॉर्थ हो जाता है. देन कंक्लूजन: इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट वन पोल फ्रॉम अ मैग्नेट. एग्जाम्पल: द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स. Activity 3. Aim to demonstrate that poles always exist in pairs. Materials required: a bar magnet and a hammer. Procedure: take a bar magnet and break it into 2 pieces. You will see that each of the 2 pieces will have both north and south poles. You can verify by using attractive and directive properties of the magnet. Again, break each piece of the magnet into 2 smaller pieces. Observation: you will see that each small piece again behaves like an independent magnet having both a north pole and a south pole. Fig. 7.5. Conclusion: it is not possible to separate one pole from a magnet, that is, the north and south poles exist in pair. नेक्स्ट है बच्चों 4, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. देन एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको, एक्टिविटी नंबर 4 में. देन एम क्या है बच्चों, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट पोल्स.
मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेना है, आयरन फिलिंग एंड अ बार मैग्नेट आप लेंगे। प्रोसीजर के अंदर टेक अ क्लीन व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे, प्लेस इट ऑन द टेबल। नाउ टेक सम आयरन फिलिंग्स एंड स्प्रेड देम ऑन द पेपर शीट। मूव द बार मैग्नेट्स ओवर द आयरन फिलिंग्स 2-3 times। ऑब्जर्वेशन, द आयरन फिलिंग क्लिंग्स टू द मैग्नेट। मैग्नेट पर बच्चों जो आयरन फिलिंग्स थी वो चिपक जाती है। द आयरन फिलिंग क्लिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंड्स ऑफ आवर पोल्स एंड वेरी फ्यू मेनी सीन्स इन द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। सो कंक्लूजन क्या है? द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स हैव ग्रेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है, while द सेंटर हैज वेरी लिटिल। तो सेंटर में कम बच्चों और साइड में सबसे ज्यादा यहाँ पर चिपक गई हैं ये आयरन बार्स बच्चों जो। Activity 4. Aim to demonstrate that magnetic strength is maximum at poles. Materials required: white sheet of paper, iron fillings and a bar magnet. Procedure: take a clean white sheet of paper, place it on the table. Now take some iron fillings and spread them on the paper sheet. Move the bar magnet over the iron fillings 2-3 times. Observation: the iron fillings cling to the magnet. The iron fillings cling in a large quantity at the ends or poles, and very few may be seen in the center of the magnet. Fig. 7.6. Conclusion: the poles of a magnet have great or strong magnetic force, while the center has very little. नेक्स्ट है बच्चों, डू यू नो के अंदर जनरली North pole of a magnet is shown with red color or simply with a red dot. The south pole is usually shown with blue color or simply with a blue dot. Next है बच्चों, test for a magnet. So repulsion is the shows test of magnetism. Magnetic attractions is possible between a magnet and a magnetic substance. Even if it is not a magnet, however, magnetic repulsion is possible only between the like poles of two magnets. Hence, magnetic repulsion is the sure test of magnetism. To show that we perform the following activities. तो कैसे हम पता लगा सकते हैं बच्चों कि ये टेस्ट करने के बाद रिपल्शन इज द शोर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म के अंदर, जिसमें मैग्नेटिज्म जो है रिपल्शन करता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। सो एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर बच्चों एम है टू शो दैट रिपल्शन इज द शोर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, एक बार मैग्नेट आपको लेनी है, एक फाइन थ्रेड लेंगे, एन आयरन स्टैंड लेंगे एंड अ गिवन आयरन ऑब्जेक्ट विच इज टू बी टेस्टेड वेदर इट इज मैग्नेटाइज्ड और द डीमैग्नेटाइज्ड। देन प्रोसीजर के अंदर बच्चों सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड यूजिंग फाइन थ्रेड। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द गिवन आयरन ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड क्लोज टू नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट एंड देन टू इट्स साउथ पोल। Observation: it is given iron object is attracted by both the poles of the magnet. It is simply a magnetic substances and not a magnet. And if the iron object experiences attractions due to one pole and the repulsions due to other poles, then the object is the magnet. So conclusion from the activity, it is clear that the repulsions is the sure test of magnetism कहलाता है बच्चों यहाँ पर। तो ये है बच्चों ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट से, और यहाँ पर बच्चों वन पोल अट्रैक्ट्स एंड अदर पोल रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे से। Activity 5. Aim to show that repulsion is a sure test of magnetism. Materials required: a bar magnet, a fine thread, an iron stand and a given iron object which is to be tested whether it is magnetized or demagnetized. Procedure: suspend a bar magnet from a stand using a fine thread. Now bring one end of the given iron object to be tested close to north pole of the suspended magnet and then to its south pole. Observation: if the given iron object is attracted by both the poles of the magnet, it is simply a magnetic substance and not a magnet fig. 7.7. And if the iron object experiences attraction due to one pole and repulsion due to other pole, then the object is a magnet fig. 7.7. Conclusion: from this activity, it is clear that repulsion is the sure test of magnetism. नेक्स्ट है बच्चों डू यू नो के अंदर
मैग्नेटिक कंपास दिया गया है। अ मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल्स kept in a aluminum box which has a glass top. A magnetic needle is free to move, rotate about its center. When the magnetic compass is placed on the table, its needle rests in the north-south directions with its north end pointing towards in north direction. Then thus a magnetic compass is used to locate the direction at a place. So ये है magnetic compass बच्चों। Next topic है बच्चों electromagnet. A solenoid which consists of a coil is insulated wire wound around a magnetic substance that behaves as a magnet only as long as the electric current passes through the coil is called the electromagnet. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है बच्चों? यहाँ पर सोलेनॉइड होता है बच्चों जो कंसिस्ट करता है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर को, और यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक सब्सटेंस तैयार होता है और बिहेव करता है मैग्नेट की तरह ही। तो जितना लंबा हो सकता है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है थ्रू द कॉइल, तो उसको कहलाया जाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म if it is the current flowing through the coil is stopped. Thus, an electromagnet is a temporary magnet which can be made a magnet by passing current. The strength of an electromagnet increases on increasing the number of turns in the coils and the strength of the current. Depending upon the shape of the iron core, an electromagnet can be either a bar electromagnet or a horseshoe U-shaped electromagnet, जैसे कि फिगर में शो किया गया है बच्चों। ये आपको दिखाया गया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, बार टाइप है, देन ये बच्चों हॉर्स शू टाइप है जिसको यू शेप्ड आप बोल सकते हो। देन इसके अंदर बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जो कॉयल होती है मैग्नेटिज्म होता है वो करंट फ्लो कर सकता है थ्रू अ कॉयल इज स्टॉप्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में बच्चों टेम्परेरी मैग्नेट होता है जहां पर मैग्नेट पास करता है करंट को, और स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंक्रीज करने की बच्चों, इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग, और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कॉइल्स में आते हैं जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द करंट भी शो कर सकते हैं। देन बच्चों एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बना सकते हैं। सो मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा लॉन्ग आयरन नेल्स लेने हैं, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर लेना है आपको, बैटरी की नीड होगी, अ स्विच की, और एक सम स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन की जरूरत होगी। देन प्रोसीजर केस 1 के अंदर आप करेंगे सबसे पहले मेक अ बंच ऑफ 5 to 8 लॉन्ग आयरन नेल्स लेनी है। यू कैन टेक ओनली वन बिग रैप of a coil of insulated copper wire on it. Current the ends of the coils to a battery of 2 or 3 cells through a switch key. Then turn on the switch key. Current starts flowing through the coil. Now bring some small pieces of iron near the nails. Observation क्या रहेगा? The iron pieces are attracted by the iron nails. Conclusion रहेगा बच्चों it shows that the iron nails have been magnified. And procedure case 2 के अंदर बच्चों स्विच ऑफ द करंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे द अट्रैक्टेड आयरन पीसेस फॉल ऑफ, तो वो नीचे गिर जाते हैं। कंक्लूजन क्या है बच्चों? इट शोज दैट आयरन नेल्स हैव लॉस्ट देयर मैग्नेटाइजेशंस ऑन स्टॉपिंग द करंट्स फ्लो थ्रू द कॉइल। देन इन्फ्रेंस के अंदर दस वी कंक्लूड दैट द आयरन नेल्स आर बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं आयरन नेल्स यहाँ पर बच्चों। Activity 6. Aim to make an electromagnet. Materials required: long iron nails, a coil of insulated copper, a battery, a switch key, and some small pieces of iron. Procedure: Case I. Make a bunch of 5 to 8 long iron nails. You can take only one big wrap of a coil of insulated copper wire on it. Connect the ends of the coil to a battery of 2 or 3 cells through a switch key. Turn on the switch key. Current starts flowing through the coil. Now, bring some small pieces of iron near the nails. Observation: the iron pieces are attracted by the iron nails. Conclusion: it shows that iron nails have been magnetized. Procedure case 2. Switch off the current. Observation: the attracted iron pieces fall off. Conclusion: it shows that iron nails have lost their magnetization on stopping the current flow through the coil. Inference: thus, we conclude that the iron nails are behaving as an electromagnet. नेक्स्ट है बच्चों यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या यूज है यहाँ पर? तो सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट यूज है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट एंड ट्रांसफर आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर डिलीवर करने में बच्चों यूज किए जाते हैं।
सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल टू रिमूव द बाइट्स ऑफ आयरन एम्बेडेड इन सेंसिटिव ऑर्गन्स लाइक द आई। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ मेनी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एन इलेक्ट्रिक डोरबेल, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक आयरन, हॉर्न, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, टेप रिकॉर्डर्स, डायनमो, सर्किट ब्रेकर्स, इन पे यूज किया जाता है। एंड पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन बुलेट ट्रेन्स में ही यूज करते हैं बच्चों, बुलेट ट्रेन्स होती है उनमें भी यूज किए जाते हैं। एमआरआई मशीन में भी यूज करते हैं, मेक यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ हाई पावर के लिए। ऑडियो और वीडियो कैसेट्स जो होते हैं ऑल्सो मेक यूज ऑफ द पार्टिसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट है बच्चों डू यू नो के अंदर only iron is used for making electromagnets. This is because when current is switched off and the coil of an electromagnet made of iron piece, then the iron piece loses all its magnetism. Steel is not used for making electromagnets because when current is switched off from the coil of an electromagnet made a steel pieces, the steel piece does not lose all its magnetism. The steel piece retains the magnetism and becomes a permanent magnet. Then बच्चों यहाँ पर टेबल दी गई है जो शो करती है डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोनिक मैग्नेट के बारे में बच्चों। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और परमानेंट मैग्नेट में तो क्या डिफरेंस है बच्चों, तो यहाँ सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों परमानेंट और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ऑफ अ परमानेंट नेचर। देन इलेक्ट्रोमैग्नेट, magnetic property of electromagnet is not permanent. It exhibits magnetic property as long as the current flows through the solenoid coil. Then बच्चों second difference है its strength is fixed and cannot be changed. Generally its magnetic strength is less. It has fixed north and south poles and direction of magnetic field is fixed. Then बच्चों its strength can be changed by changing the strength of current. It can be made as much as strong as desired. Positive of magnetism poles and direction of magnetic fields can be easily resolved by changing the direction of current flow. ये थे बच्चों डिफरेंस। देन बच्चों यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों बिल्कुल फिक्स चीजें हैं। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है। द इलेक्ट्रिक बेल इज अ सिंपल एंड कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। सो कंस्ट्रक्शंस देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं। So construction के अंदर an electric bell works on the principle of magnetic field of electric current. It consists of an electromagnets, a gong, a contact adjusting screw and a hammer. The electromagnet consists of soft iron rod mounted on a spring. One end of his iron rod passes against the top of the contact adjusting screw. देन बच्चों कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक बेल बच्चों वर्क कैसे करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट के तौर पर। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होता है, ये कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को एंड गोंग एंड कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पर लगाने होते हैं। हैमर की जरूरत पड़ती है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट करता है सॉफ्ट आयरन को, रोड को जो माउंटेड होती है ऑन अ स्प्रिंग, और एक तरफ से बच्चों जो आयरन रोड होती है वो यहाँ पर प्रेस करते हैं अगेंस्ट द टॉप ऑफ द कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग स्क्रू। देन वर्किंग प्रोसेस जान लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक बेल का। देन व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, जैसे बच्चों आप स्विच ऑन करते हो, द करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स व्हिच अट्रैक्ट्स द आयरन रोड अटैच्ड विद द हैमर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ड्यू टू दिस हैमर स्ट्राइक्स द गोंग. As it happens, the iron rods which has moved towards the electromagnets loses contact with the screw and current stops flowing through the electromagnets. Thus, in a bit of time, the magnetism with the electromagnets and the iron rod is lost. So, spring comes back to its original position. When it comes back, it contacts the screw and the process is repeated once again. This keeps happening and the hammer keeps striking against the gong producing sound until the switch is finally turned off. देन यहाँ पर बच्चों वर्किंग प्रोसेस के अंदर बताया गया है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया करंट फ्लो करना शुरू कर देता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट से, और वो अट्रैक्ट करता है आयरन रोड को, अटैच करता है जो हैमर के साथ अटैच्ड है टुवर्ड्स इटसेल्फ। देन उसके बाद जो हैमर है बच्चों स्ट्राइक किया जाता है उसको, तो क्या होता है जो आयरन रोड है वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज कर जाती है विद द स्क्रू और करंट स्टॉप हो जाता है फ्लोइंग करना बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट का। उसके बाद बच्चों थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट
मैग्नेट्स के साथ, आयरन रोड के साथ वहाँ पर लोस्ट हो जाती है और स्प्रिंग वहाँ पर वापस आ जाता है ओरिजिनल पोजीशंस के अंदर। देन इट कॉन्टेक्ट्स द स्क्रू एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। देन ये है बच्चों यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक बेल जो दी गई है बच्चों प्रॉपर तरीके से, गोंग है, ये हैमर है बच्चों, आपके पास कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग स्क्रू भी दिया गया है। देन यहाँ पर स्प्रिंग है, आयरन रोड और स्विच, देन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये प्रोसेस से बच्चों हम कर सकते हैं इसको रेडी। देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक current. We all are familiar with electricity. What is the common about appliances such as a heater, television, refrigerator, washing machine, computer, tube light, oven, mixer grinder, ceiling fan and air conditioner? All these appliances are driven by one form of energy. An example, electric energy or electricity. Electricity has become such a integral part of our lives that we cannot even think of life without it. Electricity is a form of energy existing as charge in all atoms. The SI unit of electrical charge is the coulombs. When charge is positive and negative, stay on the objects. They continue as static electricity, whereas moving charges constitute electric current or simply electricity. देन बच्चों यहाँ पर जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो हम काफ़ी नॉलेज है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज़ होती है, कॉमन है बिल्कुल सभी अप्लाइंसेज में, चाहे हीटर हो, टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ट्यूबलाइट, सब के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर होती है। देन सभी के सभी अप्लाइंसेज बच्चों यहाँ पर ड्राइवन करते हैं एनर्जी के साथ, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और यहाँ पर एनर्जी के अलग अलग फॉर्म यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों जो है वो इंटीग्रल पार्ट कहलाती है हमारी लाइफ का, और वहाँ पर बच्चों उसके बिना हम अपना जीवन सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बच्चों फॉर्म ऑफ एनर्जी में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर एज अ चार्ज इन ऑल एटम्स में चार्ज होती है। ऐसा ही यूनिट क्या है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की? देन ऐसा यूनिट है बच्चों कूलाम, इसको कूलाम बोला जाता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी चार्ज होती है। नेक्स्ट है बच्चों इंफॉर्मेटिव लिटरेसी के बारे में, इंफॉर्मेशन लिटरेरी के बारे में पढ़ेंगे। इन एन एटम protons are possibly charged particles and electrons are negatively charged particles. The magnitude of the charge on a proton or an electron is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. Thus 1 coulomb charges is equal to charge carried by 6.25 into 10 की power 18 electrons. Next है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। Whenever an electrical appliances or a gadget is actually working, an electric current flows through the appliance's gadget. An electric current is defined as the amount of charge flowing past a point in a unit time. Thus, if a charge coulomb flows past a point in time t seconds, the current I flows through the points is given as. तो बच्चों यहाँ पर कैसे देख पाएंगे कि I Q by T मीन्स कूलाम पर सेकेंड के बेस पर। देन यहाँ पर दिया गया बच्चों यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों, जिसको एम्पियर बोला जाता है और ए से बच्चों डिनोट करते हैं इसको। And 1 ampere current is said to be flowing across a point if 1 coulomb of charge flows past in 1 second. Then 1 ampere equal to होता है बच्चों 1 coulomb by 1 second. Then बच्चों next है direction of electric current क्या होती है? The direction of electric current is the direction of flow of positive charge or opposite to the direction of flow of negative charge electrons के। Then बच्चों informative दिए गई है यहाँ पर information literary से related। Current is said to be 1 amperes when 6.25 into 10 की power 18 electrons flow through a circuit in each 1 second. Next topic है बच्चों conductors and insulators of electricity को लेकर। A materials which easily allows the flow of electric currents through it is called an electric conductor. All metals, impure waters and salt solution are example of good conductors of electricity. Graphite, known metals, mercury, liquid metals are also good conductors of electricity कहे जाते हैं बच्चों। Then the electric currents can flow through a human body but it is not as good conductors as metal. Then बच्चों यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बच्चों कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि गुड कंडक्टर है वो मेटल की तरह है। Materials which does not allow the flow of electric currents through it is called an electric insulators. ऐसे मटेरियल बच्चों जिनसे कोई इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं होता, फ्लो नहीं कर सकता, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। तो मोस्ट नॉन मेटल्स आर मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक हो गया, रबर है, ड्राई वुड है, ग्लास, ऑयल, कॉटन, वूल,
रेपेप्टिडाइड, देन कैरामिक्स एटसेट्रा आर इंसुलेटर्स कहे जाते हैं। एंड प्योर वाटर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर है बच्चों, प्योर वाटर भी एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ऑल गैसेज आर ऑल्सो इंसुलेटर है बच्चों। इलेक्ट्रिक वायर्स आर ऑल्सो रैप्ड विद रबर और प्लास्टिक इंसुलेटर सो एज टू मेक देयर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सेफ। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सम कॉमन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिसमें कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स दिए गए हैं बच्चों। देन कंडक्टर्स में बच्चों सिल्वर, स्टील, कॉपर, लीड, एल्युमिनियम, इम्प्योर वाटर, गोल्ड, ह्यूमन बॉडी, आयरन, एनिमल, ब्रास, लिविंग प्लांट्स, टिन और मरकरी शामिल है बच्चों। और इंसुलेटर में बच्चों प्लास्टिक, ग्लास, नायलॉन, एबोनाइट्स, बेकेलाइट्स, कॉटन, वूल, कॉर्न, प्योर वाटर, रबर, लेदर, पॉलीथीन, एल्कोहल और गैसेस शामिल है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। सो मिका इज अ गुड थर्मल कंडक्टर बट इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है बच्चों ये। नेक्स्ट दिया गया बच्चों डू यू नो के अंदर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ केमिकल कंपाउंड इज इट मोल्टन और एक्वेटिस स्टेट इन द डिकम्पोजेस द कंपाउंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। देन बच्चों चेक योर प्रोग्रेस के अंदर इसको फिलअप को कंप्लीट करेंगे बच्चों। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? द वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज आर इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एटसेट्रा। ये सभी वेरियस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, जिसमें अंदर हम सब शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सेल्स के बारे में। So electric cells is an arrangement in which chemical energy is converted into electrical energy. Due to this reason, an electric cells is also known as the electrochemical cell. Electric cells are of two types. Then बच्चों electric cell जो होते हैं वो arrangement किया जाता है ताकि chemical energy को बच्चों convert किया जा सके electrical energy के अंदर। Then बच्चों यहाँ पर जो electric cells होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहला होता है बच्चों primary cells और दूसरा होता है secondary cells. So primary cells बच्चों a primary cells is that which once used cannot reused। हम इनको एक ही बार यूज कर सकते हैं बच्चों, दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। लाइक डैनियल सेल हो गए, वोल्टेरिक सेल हो गए, ड्राई सेल है बच्चों, लैक्टेटेड सेल्स है, एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी सेल्स है ये। देन बच्चों सेकेंडरी सेल्स होते हैं। सेकेंडरी सेल्स इज दैट विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग देम। देन बच्चों बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल्स। सो सेल्स यूज्ड इन मोबाइल फोन्स हो गए, इन्वर्टर्स में, कार्स में आर एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी सेल्स है। सेल्स are widely used in torches, alarm bells, wall clocks, remotes of TVs and ACs and in many other electrical and electronic device में यूज किए जाते हैं। एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बच्चों। तो एक्टिविटी में एम दिया गया है टू स्टडी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टॉर्च। देन प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन दिया गया बच्चों। टेक अ टॉर्च एंड ओपन इट्स स्क्रू कैप दैट हैज बैटरी सेल्स इनसाइड इट। Then take all these cells out. Now put the screw cap back on the body of the torch. Press the switch, bulb does not glow. Now put the cells inside the torch and put the screw caps back and switch on the torch. Now the bulb glows. Then यहाँ पर बच्चों आप कंक्लूजन क्या करते हैं? यहाँ पर ग्लो करने के बाद it shows that the battery cells supply the required electricity of the bulb of torch. Activity 7. Aim to study the source of electricity in a torch. Procedure and observation. Take a torch and open its screw cap that has battery cells inside it. Take all these cells out. Now, put the screw cap back on the body of the torch. Press the switch. Bulb does not glow. Now, put the cells inside the torch and put the screw cap back and switch on the torch. And now the bulb glows. Conclusion. It shows that the battery cells supply the required electricity to the bulb of torch. So most commonly used cells in the dry cells, let us study its constructions and working. देन बच्चों ड्राई सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्राई सेल्स एक्चुअली होते हैं इलेक्ट्रिक सेल बोला जाता है और ये होते हैं बच्चों सिलेंड्रिकल डिवाइस में हैविंग अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड द मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों अ जिंक कंटेनर्स दैट एक्ट्स लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल इज प्लेस्ड इनसाइड अ पेंटेड टिन कंटेनर. Zinc container is filled with a moist paste of the ammonium chloride and plaster of Paris. It works as an the electrolyte. The muslin bag with a carbon rod is placed inside the moist paste. Carbon rod is with a brass cap and acts as a positive electrode. Empty space around the carbon rod is filled with manganese dioxide and powered carbon
चारकोल के साथ बच्चों जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो जिंक कंटेनर जो होता है वो एक्ट करता है एक नेगेटिव चार्ज की तरह। बच्चों आप देख रहे हो नेगेटिव टर्मिनल की तरह प्लेस किया जाता है इनसाइड द पेंटेड टिन के अंदर और कंटेनर के अंदर, जहां पर जो बच्चों जिंक कंटेनर होता है उसको एक मोस्ट पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड के साथ फिल कर दिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ फिल कर दिया जाता है। और वो कैसे वर्क करता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और मस्लिन बैग के साथ बच्चों कार्बन रोड को प्लेस कर दिया जाता है इनसाइड द मोस्ट पेस्ट के अंदर। तो कार्बन रोड जो होती है बच्चों ब्रास कैप के साथ वहां पर एक्ट करती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह, और एम्प्टी स्पेस के आसपास बच्चों कार्बन रोड फिल हो जाती है विद मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड यहाँ पर चारकोल के साथ में बच्चों। नेक्स्ट बच्चों वर्किंग में देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं बच्चों हैज टू टर्मिनल होते हैं, उसके एक पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स वेयर एज मेटल डिस्क इज इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। The positive terminal of electric cells is marked plus, and whereas the negative terminal of the electric cells is marked minus. We can also say that the electric cells has two ends, a positive end marked plus and a negative end marked minus. When the cell is connected to an electric device, chemical reactions takes place in the cells and an electric current is produced. A dry cell gives a voltage of 1.5 volt. As a dry cell is small, compact, light and portable, so it is widely used. It a variety of household gadgets like torches, electrical wall clocks, electrically operated toys, TVs and air conditioners, reports, etc. We also use electric cells as a source of electricity for performing science experiments in the school's laboratory. The chemical present in the cell get used up very fast. The cells get damaged quickly and hence stop working. देन बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल की बात की गई है, उनके दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों। जहाँ पर बच्चों पॉजिटिव होगा प्लस यहाँ पर मार्क होगा और नेगेटिव के पास बच्चों माइनस मार्क दिया होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं बच्चों टू एंड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर। देन उनको बच्चों सेल को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ। देन केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर होता है सेल में और इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। ड्राई सेल जो होते हैं बच्चों उनका वोल्टेज होता है 1.5 और ड्राई सेल काफ़ी स्मॉल होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, लाइट होते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं बच्चों सभी के सभी। नेक्स्ट है बच्चों बैटरी। The amount of electric current produced by a cell is very small, so two or more cells are combined together to give a larger amount of current for practical purposes. A combination of two or more cells is called a battery. Then torch lights usually contain two or more cells in the form of a battery. Then बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है सेल के थ्रू। जो छोटे छोटे सेल होते हैं बच्चों, जब एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन किया जाता है साथ में तो यहाँ पर बन जाती है बच्चों, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, जिसको बोलते हैं बैटरी। देन यहाँ पर बच्चों वी मस्ट बी फैमिलियर्स विद आवर कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी एंड मोबाइल बैटरी के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर बच्चों बैटरी का यूज़ किया जाता है, वो भी बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही होती हैं। टू फॉर्म अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल 1 is kept in contact with positive terminal of cell 2 and so on as shown in figure 7.16. The appliances with which battery is to be used is connected in between positive terminal of the first cell and negative terminal of the last cell. This is called the series grouping of cells कहे जाते हैं बच्चों। देन इसके अंदर भी बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो ये दिए गए हैं बच्चों कुछ पिक्चर्स जो यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड है। Then next है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। A large amount of electricity is produced in power stations for domestic and industrial use. There are mainly three types of power plants: thermal power plants, hydel power plants and atomic power plants कहे जाते हैं बच्चों। So electric generator and inverters क्या होते हैं बच्चों? Whenever main supplies is off due to power failures, generators can be used to supply electricity. In an electric generator, mechanical energy is converted to electrical energy by rotating a copper coil in a magnetic field. The process is called the electromagnetic induction. Nowadays, inverters are used in homes and offices for interrupted power supplies. It converts chemical energy into electrical energy. Then बच्चों जनरेटर के बारे में आपने सुना होगा। जब यहाँ पर बच्चों जो मेन पावर जहाँ से आती है, मेन पावर सप्लाई होती है, तो फेलियर हो जाती है या कि लाइट चली जाती है, तो हम यूज़ करते हैं जनरेटर का बच्चों। देन यहाँ पर जनरेटर्स में बच्चों ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बच्चों यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इन्वर्टर का यूज़ बच्चों काफ़ी जगह किया जाता है, हम घर पर भी करते हैं, ऑफिस में करते हैं और बहुत जगह पे ये इसका यूज़ करते हैं। शादी या फंक्शंस में भी लाइट जाने का डर होता है तो हम इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सोलर सेल।
A solar cell is the special type of the cell which directly converts the lights and heat energy received from the sun into electricity. The energy can be easily stored for a few hours. As power of a single solar cell is small, generally a solar panel is designed which consists of a large number of solar cells connected in series. Consequently, we can get more electrical energy. Now, solar cell panels are considered to be a good source of electricity. Solar panels are now used commonly to supply electricity for street lighting and for heating waters in hospitals, railway stations and big hotels. Then बच्चों जो सोलर सेल होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट को हीट एनर्जी में और रिसीव करते हैं सीधा सन से इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनर्जी होती है बच्चों जो स्टोर कर सकते हैं हम काफ़ी घंटे तक सोलर सेल से। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं सोलर सेल के पैनल बने हुए हैं, सीधा बच्चों सूरज की रोशनी से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देन ये पावर जो होती है बच्चों सिंगल सोलर सेल की वो काफ़ी छोटी होती है। जनरली यहाँ पर सोलर पैन का यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन करके कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स लगाए जाते हैं और कनेक्ट कर दिया जाती है, उनकी बनाई जाती है एक सीरीज़, और यहाँ से है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ले सकते हैं। तो सोलर सेल्स पैनल जो बच्चे आज के टाइम में यूज़ हो रहे हैं तो बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं, जो यहाँ पर बच्चों स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर पानी गर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, रेलवे स्टेशन पर या बिग होटल्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। Wind processes kinetic energy. The kinetic energy is used to rotate the blades of windmills. As the blades rotate, kinetic energy of the wind is converted into the electrical energy through a turbine. This source of energy is cheap and renewable source of energy कही जाती है बच्चों। तो विंड प्रोसेस की जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों यूज़ की जाती है रोटेट करने के लिए द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स को। सो यहाँ ब्लेड्स रोटेट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बच्चों विंड में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर बन जाती है थ्रू द टर्बाइन। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। An electric circuit is closed path along which an electric current flows. An electric current must consist of conductors only along its entire path. There are two necessary conditions for the electric current to flow in an electric circuit. It must have a source of electric current. The circuit should be a closed, continuous path. It should not be broken or disconnected at any point. An electric circuit essentially consists of source of electricity, generally a cell or a battery, a device using an electric current, a bulb, connecting wires, and ऑन ऑफ स्विच और अ की टू मेक और ब्रेक द सर्किट। देन बच्चों इलेक्ट्रिक जो सर्किट यहाँ पर बात की गई है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों पूरा यहाँ पर ये क्लोज पाथ बना हुआ है। देन ये कहीं से भी बच्चों ओपन नहीं है। देन यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसमें से, और इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों कंसिस्ट करते हैं कंडक्टर्स को इसमें पूरे एंटायर पाथ में। और ये बच्चों यहाँ पर दो नेसेसरी कंडीशंस होती है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की यहाँ पर। देन सबसे पहले बच्चों सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये, और दूसरा ये सर्किट बच्चों क्लोज्ड होता है पूरे तरीके से जैसे कि हमने अभी बताया था। और इलेक्ट्रिक सर्किट्स बच्चों ये जरूरी होता है कंसिस्ट करने के लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक डिवाइस की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिसके अंदर से इसमें बल्ब भी होता है, वायर्स भी कनेक्ट होते हैं, ऑन ऑफ का स्विच भी इसके अंदर लगाया होता है, और साथ में की भी होता है बच्चों जो यहाँ पे ब्रेक द सर्किट कर सकता है। तो सर्किट डायग्राम दिया गया है बच्चों यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के थ्रू। नेक्स्ट है बच्चों नो द फैक्ट के अंदर in an electric circuits an electric current flows due to flow of electrons. Electrons flow in the circuits from negative terminals of a cells a battery to the positive terminal, and directions of a flow a conventional currents is taken as opposite to the direction of the flow of electrons. Examples positive terminal to negative terminal बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी 8 के अंदर हमारा एम क्या है बच्चों यहाँ पर दिखाने का, टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर बनाना है हमें। तो मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर आपको ड्राई सेल लेने हैं, एक टॉर्च बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और एक कनेक्टिंग वायर लेनी है बच्चों। देन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले टेक का ड्राई सेल्स लेने हैं ऑफ 1.5 वोल्ट के, और टॉर्च बल्ब लेंगे, स्विच एंड कनेक्ट कर देंगे बच्चों वायर के साथ उन सभी को। मेक अ सर्किट एज शोन द फिगर 7.21 में इस तरह से बच्चों वो बन जाएगा। देन ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन क्या रहेगा, कंप्लीट द सर्किट बाय पुटिंग ऑन द स्विच एंड द बल्ब हैज स्टार्टेड ग्लोइंग ड्यू टू द flow of current. Now put the switch off. The bulb does not glow because the path for flow of an electric circuits and current has been broken by the presence of air gap in the switch. Then बच्चों जैसे ही आपने यहाँ पर बंद किया तो ये भी बच्चों बल्ब बंद हो जाएगा स्विच के साथ ही बच्चों। Activity 8. Aim to make a simple electric circuit. Materials required: a dry cell,
a torch bulb, a switch, and connecting wires. Procedure: take a dry cell of 1.5 V, a torch bulb, a switch, and connecting wires. Make a circuit as shown in the fig. 7.2.1 Observation and conclusion. Complete the circuit by putting on the switch. The bulb has started glowing due to flow of current. Now put the switch off. The bulb does not glow because the path for flow of an electric current has been broken by the presence of air gap in the switch. नेक्स्ट है बच्चों क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट क्या होते हैं. Then when the path of the currents start from one terminal of the cells and ends of the other terminal of the cells without any break, the circuit is called a complete circuit or a closed circuit. And when the path of the current is broken, the circuit is called the incomplete circuit or open circuit. Current can flow through a circuit only when it is closed one. Current can never flow through an open circuit. तो बच्चों कभी भी जहाँ पर बच्चों करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर इसका मतलब वो यहाँ पर क्लोज सर्किट होता है बच्चों. देन क्लोज सर्किट के अंदर से जिनको कंप्लीट सर्किट बोला जाता है तभी करंट फ्लो हो पाता है बच्चों. देन बच्चों अदरवाइज कहीं से वो ओपन है, टूटा हुआ है, देन सर्किट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट सर्किट, जिसको ओपन सर्किट बोला जाएगा और करंट वहां से फ्लो नहीं होगा बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टर. Whenever an electric current flows through a wire of conducting material, the wire causes some obstructions to the flow of current through it, and the obstructions or oppositions caused by a conductor for flow of current through it is known as its resistance. Metals like copper, aluminum, etc. have less resistance, so they are used as wire for carrying electric current. Some other metals like the tungstens and the nichromes as alloy have high resistance to the flow of the current. Any elements which offer some resistance for flow of electric currents through it is the resistors, and resistance offered by thick copper or aluminum wire is very small, hence these are used as connecting wires in all electric currents. देन बच्चों जो रेसिस्टेंस होता है और रेसिस्टर होता है, जहां पर भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक वायर के थ्रू बच्चों, देन कंडक्ट करता है बच्चों कंडक्टिंग मटेरियल्स के थ्रू. तो वायर यहाँ पर बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन करता है, फ्लो करता है करंट को इसके अंदर से, और ये जो बच्चों ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, अपोजिशंस होता है, ये किसके थ्रू होता है? कंडक्टर के थ्रू, क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है बच्चों कंडक्टर के थ्रू ही तो कर रहा है. देन इसको बोला जाता है रेसिस्टेंस. और मेटल बच्चों जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सभी के सभी बच्चों ये कहलाते हैं हैव लेसर रेसिस्टेंस है इनके अंदर, और वायर करते हैं बच्चों यहाँ के वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रिक करंट को. देन मेटल्स इसमें हो गए बच्चों जिस तरह से निक्रोम यूज किया जाता है हाई रेसिस्टेंस के लिए ताकि करंट को फ्लो कराया जाए. और अदर एलिमेंट्स भी होते हैं बच्चों जो ऑफर करते हैं इस रेसिस्टेंस को फ्लो करने में, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, जिनको बोला जाता है रेसिस्टर. और रेसिस्टेंस बच्चों ऑफर करते हैं एक कॉपर एल्युमिनियम को, वायर को, जो काफी छोटी होती है, और ये बच्चों कनेक्ट कर सकते हैं इस वायर को ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में ताकि करंट प्रॉपर तरीके से फ्लो हो पाए. सम अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन कौन से हैं बच्चों? Then in some electric circuits, other devices are also used. They are the follows. First है बच्चों ammeter. It is used to measure the amount of an electric current flowing through the circuits directly in ampere. Then voltmeter क्या होता है बच्चों? It is used to measure the voltage in the circuit. सर्किट में बच्चों कितनी वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर का. Then है बच्चों galvanometers. It is used to detect the flow of an electric current through the circuit. Then next है बच्चों इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं? To draw the electric circuits by making the actual sketches or drawing of the cell's battery, switch, bulb or lamp, the connecting wires is a difficult job and takes a lot of time. So the scientists have devised some symbols or electrical components like the cell, battery, switch, electric bulb or lamp, connecting wires, etc., which are easy to draw, and these symbols are used to draw the electric circuits diagram easily and clearly. Common electric symbols are given alongside. Then यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कॉमन इलेक्ट्रिक सिंबल्स बनाए हुए हैं साइंटिस्ट के थ्रू ताकि आप किसी तरह कंफ्यूज ना हो. तो यहाँ पर बच्चों आप देख पाते हो सेल का ये सिंबल दिया गया है, तो जहाँ पर भी सेल रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे बच्चों. देन यहाँ पर बच्चों बैटरी में दिखाया गया है जो 2 सेल्स से है. कनेक्टिंग वायर को बच्चों बिल्कुल कनेक्ट करके दिखाना है. एमीटर को बच्चों ए से शो करेंगे इस तरह से. वोल्ट मीटर है बच्चों, ये ग्राइंडर मीटर है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच. देन इलेक्ट्रिक, आपने अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करना है तो कैसे करेंगे? अगर आपने की ओपन करनी है तो इसको ओपन दिखाना है, अगर की को क्लोज करना है तो बीच में इस तरह से डॉट लगा
लगा देंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने इस तरह से शो करना है। देन फिक्स्ड रेसिस्टर्स को दिखाना है, तो यहाँ पर बच्चों अगर वेरिएबल रेसिस्टर होगा तो उसको कट करते हुए शो करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सीरीज एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। In an electric circuits, various components and devices can be connected into two different ways, namely in series, in parallel. Let us study them one by one. Then बच्चों सीरीज पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। सबसे पहले जो हमें फिगर में दिखाई गई है 7.24 के अंदर सिंपल सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट। देन shows the arrangement of simple series circuit. देन फिगर में 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड हैं बच्चों इन सीरीज में। देन फिगर 7.24 के अंदर बी पार्ट में देखेंगे 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अरेंजमेंट में। यहाँ पर 3 बल्ब्स हैं और बच्चों 1 2 3 और यहाँ पर बच्चों फर्स्ट के अंदर 2 बल्ब्स कनेक्टेड हैं। सो इन अ सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट first all devices work simultaneously when the switch is closed, turned off. Also all devices stop working when the switch is open, off. If any of the devices is out of order, all others stop working. Then बच्चों out of order चले जाएंगे कोई भी devices तो काम करना बंद कर देंगे। Appliances do not work to their full capacity as the overall current within the circuit decreases. Then there is an advantage. It warns us when any one of the components stop working. Less wire is required and thus these are economical. And let us perform an activity and observe the behavior of the appliances when they are connected in a series circuit. Then बच्चों यहाँ पर सर्किट्स का देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 9 करेंगे बच्चों जिसमें हम देखेंगे एनालाइज करेंगे आ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट को। सो मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको 2 टॉर्च लेनी है, 2 टॉर्च बल्ब्स लेंगे, बैटरी ऑफ 2 ड्राई सेल्स लेंगे और साथ में एक बच्चों स्विच या की ले लेंगे। देन प्रोसीजर केस 1 के अंदर आप कंप्लीट करेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन द फिगर 7.25. The circuit consists of 2 torch bulbs connected in series of a battery of 2 dry cells along with a switch and put the switch on. Then observation क्या रहेगा बच्चों? Both the bulbs glow simultaneously. Then procedure case 2 के अंदर replace one of the bulbs with a fuse bulb and put the switch on. अब आपने फ्यूज बल्ब लगा दिया बच्चों। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? None of the 2 bulbs glow. कोई भी नहीं चल रहा। Then conclusion. We conclude that in a series circuit, all the appliances work simultaneously and no appliances work even if one of them appliances goes out of order. The simple series of electric circuit. इस तरह से आप बनाते हुए कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। Activity 9. Aim to analyze a series electric circuit. Materials required: 2 torch bulbs, a battery of 2 dry cells, and a switch/key. Procedure case I. Complete an electric circuit as shown in the fig. 7.25. The circuit consists of 2 torch bulbs connected in series to a battery of 2 dry cells along with a switch. Put the switch on. Observation: both the bulbs glow simultaneously. Procedure case 2. Replace one of the bulbs with a fused bulb and put the switch on. Observation: none of the 2 bulbs glows. Conclusion: we conclude that in a series circuit, all the appliances work simultaneously and no appliance works even if one of the appliances goes out of order. नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट। देन दिया गया है बच्चों फिगर 7.26 के अंदर जो शोज कर रहा है द अरेंजमेंट ऑफ द सिंपल पैरेलल सर्किट को। देन ए पार्ट में देखेंगे 2 बल्ब्स लगाए गए हैं एंड बी पार्ट में बच्चों 3 बल्ब लगाए हैं आर जॉइंट इन अ पैरेलल अरेंजमेंट्स के तहत। देन बच्चों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो इस तरह से पहले में 2 और दूसरे में 3 लगा दिए गए हैं। देन फर्स्ट बच्चों द वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड इन वन सर्किट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। एनी डिवाइस कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइसेस। इफ एनी ऑफ द डिवाइसेस इज आउट ऑफ ऑर्डर द अदर डिवाइसेस कंटिन्यू टू वर्क. Each appliances get enough electrical energy and so works to its full capacity as the bulbs glow brightly. Owning of these advantages of the parallel circuit, all the electric devices installed in houses, factories, offices, etc. are connected in parallel circuit. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू इसको पूरा प्रॉपर समझेंगे हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट को।
सो मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगा हमें सबसे पहले लेने हैं 2 टॉर्च बल्ब्स, अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स और एक लेना है एक स्विच भी बच्चों। देन प्रोसीजर केस 1 के अंदर कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 7.27. The circuit consists of 2 torch bulbs connected in the parallel to a battery of the 2 cells along with a switch. Put the switch on so as to complete the electric circuit. Observation बच्चों, both the bulbs glow strenuously. Then प्रोसीजर केस 2 के अंदर क्या देखेंगे बच्चों, रिप्लेस वन ऑफ द बल्ब्स बाय बी अ फ्यूज्ड वन एंड पुट द स्विच ऑन। देन अब फ्यूज के साथ लगाएंगे बच्चों सेम ऐसे ही। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, द फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो बट द अदर वन ग्लोज एज बिफोर। तो बच्चों पहले तो जो बल्ब ठीक था वैसे ही जलेगा, ग्लो करेगा, लेकिन फ्यूज बल्ब बच्चों जैसे आपने चेंज किया तो फ्यूज ग्लो नहीं करेगा। सो कंक्लूजन के अंदर इन अ पैरेलल सर्किट्स ऑल द अप्लायंसेस वर्क इंडिपेंडेंटली। If one of the appliances is faulty, then other appliances continue to work as before. Activity 10. Aim to analyze a parallel electric circuit. Materials required: 2 torch bulbs, a battery of 2 cells and a switch. Procedure: Kaiser complete an electric circuit as shown in the fig. 7.27. The circuit consists of 2 torch bulbs connected in parallel to a battery of 2 cells along with a switch. Put the switch on so as to complete the electric circuit. Observation: both the bulbs glow simultaneously. Procedure case 2. Replace one of the bulbs by a fused one and put the switch on. Observation: the fused bulb does not glow, but the other one glows as before. Conclusion: in a parallel circuit, all the appliances work independently. If one of the appliances is faulty, then other appliances continue to work as before. नेक्स्ट है बच्चों, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. एज अ रिजल्ट वी कैन ऑपरेट एनी वन और मोर अप्लायंसेस ऑफ आवर चॉइस इंडिपेंडेंटली. Also the electric fuse used for lighting on festivals days has a large number of bulbs connected in series. It is due to this reason that even if one bulb is fused, the whole grills goes off. देन बच्चों यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं सभी के सभी अप्लायंसेज यहाँ पर अगर कनेक्ट होते हैं साथ में बच्चों पैरेलल होते हैं. अगर एक जाएगी लाइट बच्चों कोई भी लाइट तो यहाँ पर सारे कनेक्टेड हैं तो सबके सब बच्चों गोज ऑफ चले जाएंगे. देन नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या होता है. देन बच्चों शॉर्ट सर्किट्स ड्यू टू डिफेक्टिव और लूज कनेक्शंस और डैमेज्ड वायरिंग. The live and the neutral wires may sometimes touch each other. This results a sudden large current flowing through the circuit. This is called the short circuiting. The enormous heat produced due to the large current can damage electrical devices such as sound system, bulbs, mixer grinders, television and so on, or even cause a fire. देन बच्चों शॉर्ट सर्किट्स क्या होते हैं. शॉर्ट सर्किट के अंदर कभी भी एकदम से बच्चों वायर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाता है या एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं, टच हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों करंट ज़्यादा फ्लो हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों ओवरलोडिंग. And electric circuits have a certain capacity to draw circuits from the mains. If too many devices connected to the same circuit are operated at the same time, the wires draw a much larger current from the mains than they can handle. This is called the overloading. This causes heating in the circuits that can lead to sparkling and electric fires. Then बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जब हम ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पर करंट फ्लो करा देते हैं तो क्या होगा बच्चों, स्पार्कलिंग होगी या फिर इलेक्ट्रिक फायर होगा, तो वो कहलाता है ओवरलोडिंग. नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक शॉक्स क्या होते हैं. ड्यू टू नेग्लिजेंस और इफ अ पर्सन टचेज एंड एक्सपोज लाइव वायर्स इन अ सर्किट ही शी विल रिसीव अ severe shock. Electric shocks can often be fatal. Its damage depends on the magnitude of the current and the duration of its flow through our body. Then electric shocks के अंदर बच्चों जब कभी कोई भी पर्सन टच कर देता है, एक्सपोज कर देता है, वायर को छू लेता है तो क्या करेंगे, हमें करंट ही लगेगा, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक शॉक्स. नेक्स्ट है बच्चों
सेफ्टी डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिक कनेक्शन। देन बच्चों इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के साथ हमें क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस बच्चों। तो सम कॉमन इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइसेस है आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट एज इलेक्ट्रिक सर्किट और इवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस 1 the circuit is overloaded due to large withdrawal of current, and second if there are fluctuations of current is electricity supply, and third है बच्चों if a short circuit occurs। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज उससे हमारी बचाता है, देन कनेक्ट करता है। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों यहाँ पर, जो नेक्स्ट है मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर्स, जिसमें बच्चों हम बोलते हैं मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर, MCB आपने नाम सुना होगा, वही चीज़ है बच्चों। तो रिप्लेस करते हैं फ्यूज वायर इज अ टाइम कंज्यूमिंग देन cumbersome process, and miniature circuit breakers MCB is designed to overcome this trouble. An MCB is placed in series in the live wire is the circuit and the switched on to complete the circuit. Whenever the circuit gets overloaded, the components in MCB sense the danger and it automatically goes into the off mode. देन बच्चों यहाँ पर यूज़ किया जाता है MCB को, ताकि रिप्लेस किया जाता है फ्यूज वायर को टाइम कंज्यूमिंग के लिए। देन यहाँ पर बच्चों क्यूबरसम प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं MCB को, जो डिज़ाइन किया जाता है एक ट्रबल को बचाने के लिए, ओवरकम से करने के लिए बच्चों ट्रबल से। तो MCB प्लेस करते हैं एक सीरीज ऑफ लाइव में वायर में और सर्किट में स्विच ऑन के थ्रू बच्चों और कंप्लीट करते हैं उस सर्किट्स को। जहाँ पर सर्किट की ज़रूरत होती है, ओवरलोडिंग होती है, तो MCB का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर अर्थ वायर। Then electric appliances are usually provided with the wire connected wire frames of the appliances of the earth. The main earth wire is connected to a large metal plate buried deep inside earth. In case of a leakage of current from the device, the undesirable currents reaching the outer body of the devices is flown into the earth, instead the passing through the person touching the device. This is how the person handling the devices is saved from getting an electric shock. Then बच्चों अर्थ वायर जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अर्थ वायर का यूज़ करते हैं ताकि हम बिना बात का जो बच्चों करंट होता है, कई बार फ्लो कर जाता है, लीकेज कर जाता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम हमें कभी ना हो। तो इस वजह से अर्थ वायर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों सिंपल रूल्स फॉर द सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट होम। So electricity is a very good source of energy and it helps in making our life easier and comfortable as used properly and carefully. But electrical energy is dangerous too if not used properly and carefully. Thus we should be very alert while using the electrical devices. We should take the following precautions. तो हमें क्या क्या precautions लेने चाहिए बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से, ताकि हम सेफ्टी तरीके से उसको यूज कर पाए। So never touch an electric switch, a plug or a device with wet hands. Always wear rubber slippers while working on electrical appliances. Do not put your fingers or metallic object in a socket. Fuse or MCB of appropriate currents rating should be used in an electric circuit. Do not touch electric poles during rainy seasons as leakage of currents may take place and it may give you a shock. In case of short circuit or spark in a switch, put it off immediately with the help of a wooden or plastic stick. Give proper earthing to the sockets. Never play with electric wires, switches, plugs, sockets, etc. Cover all the electrical joints with insulating strips. No joint should be loose. Then ये बच्चों सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। गीले हाथों से किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए। देन प्रॉपर तरीके से अगर कोई कट लग गया है तो उसको बच्चों टेप लगा देनी चाहिए। देन बच्चों यहाँ पर अर्थिंग का जो सॉक्स का है वो प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों किसी इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस के साथ, प्लग्स के साथ, सॉकेट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। MCB को भी ध्यान रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट करंट वहाँ पर रेटिंग चल रही है नहीं चल रही है। तो काफ़ी बच्चों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूज़ हम कैसे करें सेफ्टी के साथ। देन बच्चों चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर से रिलेटेड दी गई है समरी, तो ये भी पॉइंट एक बार रीड आउट कर लेते हैं बच्चों। A magnet is that which attracts magnetic substances towards itself. A bar magnet is characterized by its attractive property and its directive property. Each magnet has two magnetic poles which are known as north magnetic poles and south as magnetic poles. Magnetic poles always occur in pairs. The strengths of two poles of a magnet are equal and these can never be separated from one another. A freely suspended bar magnet always comes to rest along the north-south directions. Like poles of magnets repels and unlike poles of the magnets attracts. The magnetic strength is maximum at the poles of a magnet. An electromagnet is a temporary iron magnet which can be magnetized by passing currents through a coil wrapped around the iron bar. It behaves a magnet so long as the current is flowing
through the coil. Electromagnets are used in a large number of electrical devices. An electrical bell is one such example in which an electromagnet used. The flow of electric charge through a conductor continues and electric currents. Electric currents is defined as the large and charge flowing per unit time. The SI unit of the current is ampere. The direction of the conventional current is taken to be the directions of flow of positive charge. Electricity is a form of energy that exists as charge in all atoms. The SI unit of the charge coulomb, and as electric cells is a device which produced a small amount of electricity. Those substances which have comparatively high electric resistance are called the resistors. A continuous conducting path continuously of wire, bulb, switch, etc. between the two terminals of cells or battery along which an electric current flows is called the circuits. Electrical conductors are materials which easily allow the flow of electric currents through them. All metals and alloys the electrical conductors. Electrical insulators are the materials which do not allow the flow of electric currents through them. Rubber, wood, glass, plastic, etc. are electrical insulators. Electric cells, batteries, main supply generators, inverters and solar cells are commonly employed source of electricity. Electric fuse or miniature circuits breakers MCB are safely devices that break the circuit in the event of an excessive power surge. Earthing is a safety technique used to prevent electric shocks due to leakage of current. In a series circuits, all devices work simultaneously. If one of the devices goes out of order, then all other devices also stop working. In a parallel circuits, all devices work independently. If any one device goes out of order, then all other devices continue to operate as before. In domestic electric circuits, all appliances devices are joined in a parallel circuit. Then बच्चों समरी चैप्टर की यहीं पर फिनिश होती है. Then चैप्टर से रिलेटेड दिए गए बच्चों की टर्म्स, तो इनको भी रीड आउट करेंगे और पढ़ेंगे. नेक्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों चैप्टर से रिलेटेड माइंड मैप भी. देन बच्चों यहाँ पर दिया गया है माइंड मैप जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड. देन बच्चों लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो उसको सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है और इलेक्ट्रिसिटी. देन लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है बच्चों, अ बार मैग्नेट points in north-south direction. Poles exist in pairs. Like poles repels and unlike poles attract each other. Maximum strength of magnets is at poles and repulsion is sure test of the magnetism. Then electromagnets बच्चों temporary iron magnets होती है used in a large number of electrical devices. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं जिसके अंदर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दैट एग्जिस्ट एज द चार्ज इन ऑल एटम्स. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है बच्चों कुलाम. एंड करंट बच्चों होता है I इक्वल टू Q बाई T. यूनिट होती है इसकी बच्चों C बाई S और द एम्पियर. देन डायरेक्शन ऑफ द करंट पॉजिटिव होता है बच्चों और नेगेटिव की तरफ जाता है. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्ट है, तो इसके अंदर बच्चों प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं देन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को, रेसिस्टर्स को. देन इसको पढ़ेंगे बच्चों. सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. देन कंडक्टर क्या होते हैं, अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसके अंदर सिल्वर, स्टील, गोल्ड, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट होती है बच्चों. इंसुलेटर्स के अंदर डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें प्लास्टिक है, प्योर वाटर है, रबर है, वुड है और यहाँ पर बेकेलाइट है. देन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेल, ड्राई सेल, बैटरी होते हैं. प्राइमरी सेल बच्चों कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड सेकेंडरी सेल बच्चों कैन नॉट बी यूज्ड अगेन बाय चार्जिंग इट. देन नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें बच्चों बना होता है क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. एंड देन बच्चों रेसिस्टर क्या होता है, सब्सटेंस विच ऑफर्स सम रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देन यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जो क्लोज्ड पाथ होता है उसके अंदर सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट है और एक है बच्चों पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट. देन बच्चों सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ द सिंपल सीरीज सर्किट होता है. ऑल डिवाइसेस वर्क simultaneously. इफ एनी डिवाइसेस बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर देन ऑल अदर डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग. देन पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अरेंजमेंट ऑफ सिंपल पैरेलल सर्किट. ऑल डिवाइसेस वर्क इंडिपेंडेंटली. All devices work with full capacity. If any devices become out of orders, then other devices continue to work. Then बच्चों यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया है यहाँ पर माइंड मैप को जो चैप्टर से रिलेटेड था. काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों आपको चैप्टर को पर थोरोली पढ़ना पड़ेगा ताकि आप माइंड मैप को भी इजीली पढ़ पाए और समझ पाए. तो देन चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी बच्चों खुद से कंप्लीट करेंगे.